of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory 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 of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Oh, Rabashatere Danababrahatere Rabo. Diva Baranati Alebre Rabashatorabo Leke. Shamtara Baramatere Premanara Shamtara Rama. He abrati a sobreke. He mandare che membriantere covila dalla prodanere. He mabraga samjalavre kamara gantere vikrmobre shamtarane. He brahmaraga samadara tiribara pararaga samataro ravatare vikanadere. Karamatala dala tirabara kamara gantere bara kamala gantere rabo sagarantere mere. He mabraga digate lamra bani samtara. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rabakata la Barabash. Libre menere molboro lo bushmata na balas. Hey, स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हैं। हे पिता
कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। Abba Father, Father, Father. Abba Father, Father, Come on, सभी लोग दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर मिलकर पुकारिए, अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर। हमारे लिए एक प्यारे पिता स्वर्ग में है, वो हमको प्यार करता है। सभी लोग हाथ उठाकर पुकारिए, अब्बा फादर, अब्बा फादर। थोड़ा बाका दे रे दे रे 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 बोशा दे रे रे बाबा। Abba Father, Father, Father. Abba Father, Father, Father. Blessed Jesus, blessed Jesus, Jesus, Jesus. Blessed Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit, 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 Spirit. Holy Spirit, Spirit, Spirit. Abba Father, 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 Father. Abba Father, Abba Father. Celebre la baraka mero lobori. Abba Father. Celebre calabarada doloro. Encounter the love of the Father. Abba Father. Abba Father. Father. Privileged to have Pastor Larry Nielsen with us tonight, and let's all clap our hands and welcome Pastor in our midst. और क्यों न तालियां बजा के प्रभु के दास पास्टर लैरी निल्सन को हमारे बीच में स्वागत करें। Amen. Welcome, Pastor. Hallelujah. Thank you very much for the opportunity to be here.
धन्यवाद इस समय के लिए कि मैं इस रीति से आपके बीच में जुड़ पाया। I would like to say thank you very much for praying. It changes things. आपकी प्रार्थनाओं के लिए दिल से धन्यवाद। प्रार्थनाएं बदलाव को लेकर आती है। I want to talk a little bit about one of my favorite subjects. It's called the prodigal son. और आज रात आपके बीच में परमेश्वर के वचन से मेरे एक बहुत ही पसंदीदा विषय को मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा, और यह है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। So your homework is reading Luke chapter 15. और आज आपका गृह कार्य है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पढ़िए, Verses 11 through 24. 11 से लेकर 24 तक। This talks about the father and two sons. और यहाँ पर पिता और उसके दो बेटों के बारे में हम देखते हैं। But the father, I believe, should be the center of attention. और इस दृष्टांत के अंदर मैं समझता हूं कि केंद्र पिता होना चाहिए, Because his love for his sons was extravagant, unrestrained. और क्योंकि जो पिता का हृदय या पिता का प्रेम बेपरिमाण हिसाब से इस दृष्टांत में प्रकट होता है। Most teaching I have heard about this has always been very negative. और अधिकांश लोग इन अध्यायों के अंदर से एक नकारात्मक रीति से कई बातों को बताते हैं। That is really sad because the positive aspect of the story is wonderful. और लेकिन वास्तविकता में यदि हम समझे तो इस घटना के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर बहुत ही अद्भुत और रोचक कुछ बातें प्रभु ने रख रखी है। His love for us is unending. और पिता का जो प्रेम है वो हमारे लिए काफी गहरा है, और उस प्रेम ऐसा प्रेम है जो अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं बांधता। His forgiveness has no boundaries. और उसकी क्षमा की कोई सीमा नहीं। But man's nature is to submit to whatever is in front of them. लेकिन मनुष्य की आदत क्या होती है, उसके सामने जो बातें आती है वो वहां पर अपने आप को सीमित करता है। And we have a tendency of forgetting who we are, sons and daughters of God. और हमारी एक आदत है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं। Think of it this way. God gives you an empty book and every day you write your story. और आप इस प्रकार से सोचिए, परमेश्वर ने आपको एक खाली पुस्तक दे दी और आप उसके अंदर हर रोज आपकी कहानी हर पृष्ठ पे आप लिख रहे हैं। So when I get up in the morning, I decide it's going to be a good day or not a good day. और मैं जब सुबह उठता हूं, मैं निर्धारित करता हूं आज का दिन अच्छा होने जा रहा है या बुरा होने जा रहा है। I have a choice. Am I going to realize I am a son or daughter of God? और मेरे पास में एक चुनाव है इस बात को समझने के लिए कि मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं, या मैं किस पद में हूं। Or am I going to submit to the plan the enemy has for me? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रु की योजनाओं के अधीनता में मैं अपने आप को करने जा रहा हूं। Man's nature is not to submit to God's direction. और मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो परमेश्वर की अगुवाई में या उसके मार्गनिर्देशन की अधीनता में अपने आप को लाना पसंद नहीं करता। That means if I try it on my own, I waste my life. उसका अर्थ यह है कि यदि मैं अपनी बुद्धि से अपने तरीके से कार्यों को करने का प्रयास करूंगा तो मेरे जीवन का अधिकांश समय मैं व्यर्थ गवा दूंगा। But I believe all of us need the love of someone else, especially God. लेकिन मैं समझता हूं कि हम में से हर एक को किसी और के प्रेम की जरूरत है, और विशेष करके पिता के प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की हमें जरूरत है। I need to know that God has forgiven me. और मुझे ये समझना भी जरूरी है परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। I need that more than probably the food that I eat. और मैं जो भोजन खाता हूं उससे कहीं बढ़कर मेरे जीवन में यह गहराई से मुझे समझना जरूरी है कि मैंने प्रभु से क्षमा को पाया है। In this story, it talks about the father and two sons. और यहाँ पर हम पिता और उसके दो बेटों के बारे में देखते हैं। And the younger son wanted to go to a different country.
और हम देखते हैं कि छोटा बेटा अपने पिता के घर को छोड़कर दूसरे नगर में जाना चाहता था। But I find many of us go to a different country in our minds. और मैं ऐसा समझता हूं कि हम में से बहुतेरे लोग अपने मन में, अपने ख्यालों में हम दूसरे देश में चले जाते हैं। Personally, I think this whole story is about the father. और व्यक्तिगत रीति से यदि मैं कहूं तो ये पूरी जो दृष्टांत है ये पिता के हृदय के बारे में है। The father's love, the father's acceptance. पिता के प्रेम के बारे में, कैसे पिता पुत्र को स्वीकार करता है उसके बारे में। In Luke, it talks about a man having two sons. And what does he do with the sons? और लूका में हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और अब इन पुत्रों के साथ में ये कैसा बर्ताव करता है। Family is extremely important. और परिवार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। The son would never ask the father to do what he did unless he knew the answer. और अगर पिता को यह नहीं मालूम है कि पुत्र को यदि यह नहीं मालूम है कि पिता क्या उत्तर देगा तो पुत्र उस प्रकार का कदम वहां नहीं उठाता। The young son went to his father and says, "Give me the money that is my inheritance so I can leave." और छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। What he was saying was, I wished you were dead, father, because I need my inheritance. शब्दों में वह क्या कह रहा था कि काश आपकी मृत्यु हो जाती और मेरा हक मुझे मिल जाता। Yet the father gave him what he wanted. लेकिन आप देखिए इसके बावजूद भी पिता ने, बेटे ने जो कुछ मांगा वह सब उसे दे दिया। I think the younger son was saying, Dad, I think I can do this better than you can. और दूसरे शब्दों में मैं ऐसा समझता हूं कि छोटा बेटा कह रहा था मानो पिता से, पिताजी आपसे भी अच्छा मैं इस संपत्ति को मैं इस्तेमाल में ले सकता हूं। So if you will just give me the money, I will show you how good I am. और आप अगर मुझे संपत्ति दे दोगे, मेरा भाग मुझे दे दोगे, तो मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि कैसे मैं उसे सही रीति से इस्तेमाल में करूंगा। I believe this is not a good understanding of who the father is. और मैं समझता हूं कि यह समझ एक सही समझ नहीं है पुत्र के पिता के स्वभाव के बारे में। Yet the father responded immediately. लेकिन आप देखिए पिता इसके बावजूद भी तुरंत वहां पर कार्य कर रहा है। Basically what he was saying is, all I have is yours, so what do you want? और पिता क्या कह रहा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, बोल तुझे क्या चाहिए। What does this young man want and what is he thinking? और यह जवान क्या मांग रहा है और यह पिता क्या सोच रहा है। Isn't he safer with his father? क्या वो पिता के साथ में सुरक्षित नहीं है? Our father is our resource. He is our life. He is our emotion. He is our will. और हमारा पिता हमारा स्रोत है, हमारी भावनाओं का, हमारी इच्छा शक्ति का, हमारे व्यक्तित्व का स्रोत वही है। He is the giver of life every day. और वह प्रतिदिन जीवन का दाता है। Often I want to claim that because I think I can do it better than he does. और अक्सर हम इस प्रकार की मांग इसलिए रखते हैं, हमें लगता है हम उससे बढ़कर चीजों को कर सकते हैं। Sometimes I just say, okay, God, you stand over there and you watch me, how good I am. और कभी कभी मानो हम कहते हैं, प्रभु आप वहीं खड़े रहिए और आप देखिए हम कितने बेहतर तरीके से चीजों को कर पाते हैं। I can do this, God. If you'll just let me, I can do this. और प्रभु आप मुझे प्रेम करो, बाकी तो मैं काम कर लूंगा अपने दल पे। But this father allowed his son to go away. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पिता अनुमति दे रहा है पुत्र को घर से जाने के लिए। Even from the beginning, Adam and Eve did the same thing. और आदि में आदम और हव्वा ने भी तो यही किया था। Didn't they say, oh, I think I could do this better than God's plan for my life? और उन्होंने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था कि परमेश्वर की जो योजना है उससे बढ़कर हम इन कार्यों को कर सकते हैं। But God gives me breath every day. लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने हर दिन श्वास मुझे दिया। He helps me to think correctly every day. और हर दिन वो मुझे सोचने के लिए मदद करता है। He shows me how to earn money to make a living.
और वह मुझे बताता है कैसे धन कमाना है अपनी जीवन यापन करने के लिए। But do I have to prove to myself that I'm as good as God? लेकिन क्या मुझे साबित करके बताना होता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं? What cannot be emulated must be eliminated. और जो बात जिसे छिपाया नहीं जा सकता उसे प्रकट करना होता है। The younger son wanted to be just like his father, but on his own terms. हम देखते हैं कि छोटा बेटा पिता के समान बनना जरूर चाहता है, लेकिन वह अपनी शर्तों पर वह बनना चाह रहा था। But the younger son didn't have the experience the father had. अब छोटे बेटे के पास में पिता के जैसा अनुभव नहीं था, So he felt that he could prove to his father how good he was. और वह पिता के सामने साबित करना चाहता था कि वह कितना बुद्धिमान है और कितना अच्छी रीति से उन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। You sow a thought, you reap an action. आप एक विचार को बोते हैं और एक प्रतिक्रिया को आप काटते हैं। It's amazing to me that people plant bad seeds and get a bad harvest. और आप देखिए, यदि हम गलत बीज को बोएंगे तो हम गलत कटनी को काटेंगे, And then they get angry at God because they get a bad harvest. और उसके बाद में हम प्रभु पर क्रोधित होते हैं कि हमारी फसल खराब हो गई। Yet they plant the same seeds again और उसके बाद वापस वही बीज बोते हैं and get a same harvest, a bad harvest. और वापस वो खराब फसल मिलती है, And then they blame God again. और उसके बाद पुनः परमेश्वर पर दोषारोपण करते हैं। If I want a good harvest, I plant good seeds. प्रियो, यदि हमें एक अच्छी फसल काटनी है तो हमें अच्छा बीज बोना पड़ेगा। And we must know that the seeds of God are good seeds. और हमें यह समझना है कि परमेश्वर के जो बीज है वे अच्छे बीज है। And when I plant them in my heart, it's going to give a good harvest. और यदि उन बीजों को, वचन रूपी बीजों को मेरे हृदय के अंदर में बोऊंगा तो एक अच्छी कटनी को मैं काट पाऊंगा। The father let this young man go because he loved him. हम देखते हैं पिता ने उस बेटे से प्रेम करने के कारण उस बेटे की मांग को माना और उस बेटे को जाने दिया। He knew that love only possesses what is released or what's given. और वह इस बात को जानता था कि प्रेम देने से बढ़ता है। I cannot just say, I want you to love me without me responding and loving you. और मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुझसे प्यार करता हूं जब तक कि मैं उसे अनुमति न दूं कि प्रत्युत्तर के रूप में वह भी पुनः प्यार कर सके। But my question is, what was the father thinking? लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिता क्या सोच रहा था? I think the father's heart was broken because of his son. मैं समझता हूं कि पिता पुत्र की उस प्रतिक्रिया के कारण पिता का हृदय टूट रहा था। And anytime we turn away from the father, I think his heart breaks. और जब हर बार हम पिता से मुंह मोड़ते हैं, पिता का हृदय टूटता है। When I resist his counsel, I think his heart breaks. और जब मैं उसकी सलाह का विरोध करता हूं, तब उसका हृदय टूटता है। When we refuse his guidance, his heart breaks. और जब हम उसके मार्गनिर्देशन को अनसुना कर देते हैं, उसका हृदय टूटता है। And when I renounce his goodness, I miss the best that God has for me. और प्रभु की अच्छाई को, प्रभु की भलाई को जब मैं ठुकरा देता हूं, मेरे जीवन की परमेश्वर के लिए परमेश्वर की जो बेहतर योजनाएं हैं, मैं उनसे वंचित होता हूं। This young man ran away from home because of rebellion. हम देखते हैं यह जवान बलवा करके घर से भाग गया। He went to a different land. वह एक दूसरे देश में चला गया। Many of us don't go to a different land, but we go in rebellion in our minds. और हो सकता है शायद हम छोड़कर दूसरे देश में नहीं जा रहे, लेकिन बलवा करके हमारे मन के अंदर हम कहीं दूर चले जाते हैं। I believe that's why daily we need to go to God and say, what do you want me to do today? और प्रियो, इसलिए मैं समझता हूं कि अनिवार्य है कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के पास में जाएं और प्रभु से कि प्रभु आज हमें बताइए कि हमें करना क्या है। Because I don't need to run to another country to be rebellious. क्योंकि मुझे
बलवा करके दूसरे देश में भागना नहीं है। Maybe I am so self-centered that I have walked away from my faith. और हो सकता है मैं इतना अधिक स्व केंद्रित हो गया हूं कि विश्वास से मैं दूर चला गया हूं। Maybe I've been in a bad relationship. हो सकता है मेरा संबंध सही नहीं हो। My priorities have changed towards me and what I need. और हो सकता है मेरे जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई हो। All that leave the Father focus on themselves. और वह सारी बातें जो पिता से हमें दूर ले जाती है, उसका अर्थ यह है कि हमने अपने को प्राथमिकता दी और अपने पर स्व केंद्रित हम हो गए। And the longer I am away from God, the harder my heart becomes. और जितना दूर मैं प्रभु से जितने ज्यादा समय तक रहता हूं, उतना मेरा हृदय कठोर हो जाता है। Because I begin to focus on what makes me happy, what I need. क्योंकि उसके बाद में हम स्वार्थी हो जाते हैं और हमारी क्या जरूरतें हैं उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। I have learned in my life, if I submit to God, things work better for me. और मैंने अपने जीवन के अनुभव में ये सीखा है, यदि मैं मेरे जीवन के निर्णयों को प्रभु के हाथों में सौंपता हूं तो वह बेहतर तरीके से मेरे जीवन में प्रभु से पूरा करता है। But sometimes I feel I know better than God does what I need. लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु से ज्यादा अच्छी रीति से मुझे मालूम है मेरी जरूरत क्या है। This does not end well for me. लेकिन वह मेरे लिए जब मैं ऐसे निर्णयों को लेता हूं उसका अंत सही नहीं होता। But I keep doing it again and again and again. लेकिन बार बार मैं इस गलती को दोहरा देता हूं। Oh God, you just don't understand where I am. What's wrong? प्रभु आपको नहीं मालूम मैं कहाँ हूं, क्या क्या समस्या से मैं गुजर रहा हूं। And I begin to do things that really separate me from the love of my Father. और मैं ऐसे कार्यों को अंजाम दे बैठता हूं जो मुझे मेरे पिता के प्रेम से मुझे दूर कर देता है। I can worship God wherever I am, whatever I'm doing. मैं जहां भी हूं जो भी कर रहा हूं वहां पर भी प्रभु की आराधना में कर सकता हूं। Your Father, my Father is always waiting for us. और आपका पिता और मेरा पिता हमेशा हमारी बाट जो होता रहता है। He's there in your home right now, वह अभी आपके कमरों में है, saying, would you please follow me? और वह कह रहा है कि क्या तुम मेरे पीछे चलोगे। You don't have to be a preacher आप for कोई God to प्रचारक, love you. ऐसा नहीं है कि आप प्रचारक हो तो ही प्रभु आपसे प्रेम करेगा। I do whatever God tells me to do, और प्रभु मुझसे जो कुछ भी कहता है वो मैं करता हूं, because that's what the Father wants me to do. क्योंकि पिता मुझसे वही चाहता है। Because I have learned those who preach have greater responsibility. क्योंकि मैंने सीखा है कि जो प्रचार करते हैं उनकी जवाबदारी ज्यादा होती है। Some of the best times I have with God are when I'm walking by myself. और मेरे जीवन के सर्वोत्तम समय वह होते हैं, मैंने अनुभव किया है कि जब मैं अकेला प्रभु के साथ में चलता हूं। Because I can actually listen and hear what God wants me to do. क्योंकि जब मैं अकेले में प्रभु के साथ में होता हूं, प्रभु की आवाज को मैं सुन पाता हूं और मेरे जीवन में मैं उसे समझ पाता हूं। When I was first saved, I prayed non-stop as long as I was awake. और जब मैंने उद्धार का अनुभव पाया था उस समय में लगातार बिना सोए में प्रार्थना में समय को व्यतीत करता था। And someone says, do you want to hear what God says? And I said, no. और किसी ने मुझसे कहा क्या तुम प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। Because I knew God was going to say, go to Africa, and I didn't want to go. और क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रभु कहेगा तो अफ्रीका जा, और मैं कहूंगा नहीं प्रभु अफ्रीका नहीं जा सकता। So I would wake up in the morning, I would start praying, I'd have my coffee, I would pray until I got to work. I came home, I was tired, I would pray and go to bed. और मैं सुबह प्रार्थना करता, कॉफी पीता, फिर प्रार्थना करता, फिर काम पे चला जाता, और फिर प्रार्थना करता, वापस आता, प्रार्थना करता और थक के मैं सो जाता। One day after about 6 months, I came to my home. I was very tired. I sat quietly and I heard this. और लगभग 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। मैं बहुत थक चुका था और एक दिन जब मैं घर में बैठा हुआ था,
मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। I heard this voice speak to my heart. Are you ready to listen now? और मेरे अंदर एक आवाज गूंजी, क्या तू मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है? I said, who is that? मैंने कहा ये कौन है? I had never heard the voice of God before in my entire life. और उसके पहले मैंने कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुना था। And I said, oh man, I made a terrible mistake. और मैंने कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, Because now God's going to tell me go to Africa. क्योंकि अब प्रभु मुझसे कहेगा तो अफ्रीका चला जा। Well, guess what God said? क्या आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? Go to Africa. अफ्रीका जा। I said, no, God, I'm not going. You can go. I'm staying where I am. और मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप चले जाओ, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। For many days, I heard the same thing to my heart. और Go कई to Africa. और कई दिनों तक वही आवाज मेरे कानों में गूंजती रही बार बार कि अफ्रीका जाओ। I said, I don't know who you are, but God would never tell me to go to Africa. और मैंने कहा मैं नहीं जानता आप कौन हो, प्रभु तो नहीं बोलेगा मुझे अफ्रीका जाने के लिए। Well, the voice continued constantly, go to Africa. और वो आवाज बार बार मेरे पास आती रही, अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाओ। So finally I said, okay, God, और मैंने अंत में थक कर कहा ठीक है प्रभु, but you need to know, God, they don't have cars. They all live in mud huts. They don't wear clothes, and I don't know what they eat. और मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपको मालूम होना चाहिए उनके पास में गाड़ियां नहीं होती है, वे लोग मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं, और क्या खाते हैं इसका मुझे कोई अता पता नहीं है। So if you want me to go under those circumstances, I will go. और यदि आप उन परिस्थितियों में मुझे भेजना चाहते हो तो ठीक है मैं चला जाऊंगा। So I prepared myself. I went to Africa. और मैंने तैयारी की और मैं अफ्रीका गया। When I arrived, they picked me up in a very nice car. अब मैं जैसे अफ्रीका पहुंचा, एक बहुत ही अच्छी कार के अंदर आकर उन्होंने मुझे स्वागत किया। They took me to a very nice home. और एक बहुत ही अच्छे घर में मुझे वे ले गए। I recognized all the food on the table. और मैंने जो भोजन मेरे सामने रखा था मैंने उस सबको देखा। And the best thing of all, everyone was wearing clothes. और सबसे बड़ी बात सब कपड़े पहने हुए थे। And I began to think to myself, my father knew what was going to happen long before I did. और मैं मन में सोचने लगा मेरा पिता को मालूम था कैसे क्या होगा, कैसी स्थितियां रहेगी मुझे मेरी समझ में आने से पहले। But I was unwilling to hear what he had to say to me. लेकिन मैं इच्छुक नहीं था प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, उस पर हाँ बोलने के लिए। I loved the people. I loved my time. और मुझे लोग बहुत पसंद आए, बहुत ही अच्छा समय मेरा अफ्रीका में रहा। Everybody in the world is exactly the same when they've got Jesus. और हर संसार का हर व्यक्ति एक जैसा है जब उसे यीशु की जरूरत होती है। So I can worship God wherever I am, in my home, in my car, at my job. और मैं कहीं भी यीशु की आराधना कर सकता हूं, मेरे घर में, गाड़ी में, नौकरी के स्थान पे। And prayer to me is just communication, me communicating with my Father. और प्रार्थना का अंदाज प्रभु ने बदल दिया। प्रार्थना मेरे लिए एक संवाद बन गई, एक बातचीत बन गई जहां पर मैं प्रभु से बातचीत करता। But remember this, God wants to talk to me also. लेकिन इस बात को कभी न भूलिए कि परमेश्वर भी आपसे बातचीत करना चाहता है। I do not know any father or any mother that does not want to communicate with their children. और मैं किसी ऐसे पिता के बारे में नहीं सोचता कि ऐसा कोई पिता होगा जो अपने बच्चों से कभी बात नहीं करना चाहता। God is exactly the same. He wants to communicate with us. और प्रियो परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। But to do that, I have to listen. लेकिन यदि वो करना है तो मुझे सुनना सीखना होगा। I go to God
and let him know everything going on in my life, but then I need to listen to what he says. और मैं प्रभु के पास में जाता हूं, मेरे दिल की सारी बातें प्रभु के सामने उंडेल देता हूं, लेकिन इसके बाद में परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुनने के लिए मुझे बैठना होता है। But I think I am very much like many other people. और हमें ऐसा लगता है कि हम भी अन्य लोगों के समान हैं You know, God is really busy. कि परमेश्वर बड़ा व्यस्त है He has billions of people to take care of. और इतने असंख्य लोग इस संसार में जिनके उसको ध्यान रखना होता है। So if I bother him, that's going to take time away from someone else. और यदि मैं अधिक समय उसके साथ बिताऊंगा तो किसी और का समय मैं छीन रहा हूं। But that is absolutely not true. लेकिन प्रियो वह सच्चाई नहीं है। God has time for each one of us. परमेश्वर के पास में हम में से हर एक के लिए व्यक्तिगत समय है And it doesn't matter how big or how small your need is. और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी आवश्यकता कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। God is always willing to listen and to hear you. परमेश्वर इच्छुक है आपकी बात को सुनने के लिए और आपके लिए कार्य करने के लिए। But he's also willing to give you what you need. लेकिन उसी के साथ में आपकी जरूरतों को वो पूरा करना चाहता है। Didn't he promise he would give us what we need rather than what we want? आप देखिए प्रभु ने वायदा दिया है कि हमारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेगा, हमारी लोभ की नहीं आवश्यकताओं की। I cannot mistake what I need for what I want. और वे बातें जो मेरे लिए जरूरत है वे बातें, और मैं अपने दिल से कह सकता मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत सारी बड़ी सूची बना सकते हैं, उन दोनों के अंदर परमेश्वर एक अंतर को रखता है। So I challenge all of us. You are not important to God. Every one of you are important to God. और मैं आपसे कहूं आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु के दृष्टि में अनमोल है। That's why Jesus came to get us back to the Father. और इसीलिए यीशु संसार में आया कि पिता के साथ में हमारे उस रिश्ते को पुनः स्थापित कर दे। Therefore, worship where you are. It doesn't matter. You're cooking food, worship God. और प्रियो इसलिए आप हर समय आराधना कर सकते हैं। आप खाना बनाते हैं उसके साथ में आराधना कर सकते हैं। If you are walking on the street, worship God. आप सड़कों पर चलते चलते प्रभु की आराधना कर सकते हैं। I sometimes have people look at me and I think they may think I'm crazy. और कभी कभी ऐसा होता है जब लोग मुझे देखते हैं आराधना करते हुए, उन्हें लगता है कि पागल हो गया है। Because I'm all by myself, my hands are raised, and I'm yelling very loud. क्योंकि मैं अकेला खड़ा हूँगा, कई बार जोर से मैं चिल्ला के प्रार्थना कर रहा होगा, मेरे हाथ उठे हुए होंगे, देखने वालों को लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। But that's okay, because it's me and my Father. लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरे और मेरे पिता के बीच की बात है। Many people are looking for God in many wrong places. आज बहुतेरे लोगों के साथ में समस्या यह है आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं परंतु गलत जगहों में। And I believe that's why we have so many gods in the world, because I need to serve all the gods. और आप देखिए आज उसी बात का परिणाम है कि मनुष्य ने अपने अपने तरीके से बहुत तेरे देवी देवताओं का निर्माण कर लिया है ताकि हर व्यक्ति किसी न किसी रीति से आराधना में अपने तरीके से वो समय को व्यतीत करे। There are many ways that I can squander an inheritance or use an inheritance. और बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा मेरी जो संपत्ति है उसको मैं इस्तेमाल में ले सकता हूँ। But let me tell you the best inheritance that we could possibly ever have. लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे उत्तम मीरास क्या है जो हम पा सकते हैं। Jesus is my inheritance. यीशु मसीह स्वयं मेरा मीरास है। That is absolutely amazing to me. और मेरे लिए वो अद्भुत है, रोचक बात है। God chose you and me to give his inheritance to. और प्रियो परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना कि वह हमें उस संपत्ति का बालिक बना सके, उसका वारिस That बना सके। means that he trusts you more than you trust yourself.
और उसका अर्थ क्या है? आप अपने आप पर जो भरोसा करते हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। If I can remember that, I will daily walk in his inheritance. और यदि मैं उस बात को सही रीति से समझ जाऊं तो मैं प्रतिदिन उस मिरास को पाने के लिए उस हक के साथ में मैं चल पाऊंगा। Yet there are many seminars and many classes on you need to be successful. और हम देखते हैं आजकल बहुत सारी सभाएं होती है, लोग सिखाते हैं सफलता कैसे पाना है। Success to me is doing what God has called me to do. और मेरे लिए सफलता का मापदंड क्या है? क्या आप वह कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है? Even if that seems small to you, that's what God wants you to do. और हो सकता है वो आपको बहुत ही हल्की बात लगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जो प्रभु ने कहा है वो आपको करना है। In Acts chapter 9, there was a woman, her name was Dorcas. और प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के अंदर दोरकास नामक एक बहन के बारे में हम देखते हैं। Nobody knew who this person was. और उसके 36वें पद में हम देखते हैं इसके बारे में अन्य किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। But the Bible says that she died and the whole community was upset. और हम देखते हैं बाइबल में जब दोरकास की मृत्यु होती है और पूरे वहां के लोग उस बात से दुखी हो जाते हैं। She was never a preacher. वो तो एक प्रचारिका नहीं थी, She was not an apostle or an evangelist. वो एक प्रेरित नहीं थी, वो एक सुसमाचार प्रचारिका नहीं थी। She didn't have crusades or she didn't write a book. और उसने कोई बड़ी क्रूसेड्स नहीं किए, कोई किताब नहीं लिखी। She was never on the radio. She was never on TV. और न तो वो रेडियो में थी न टीवी में थी। So why were people upset when she died? लेकिन इस दोरकास की मृत्यु पर इतने सारे लोग दुखी क्यों हुए? Doesn't the Bible say the people were showing all the clothes that she had made? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन के अंदर देखते हैं कि लोग आकर बता रहे हैं वे वस्त्र जो दोरकास ने उनके लिए बनाए थे। She took what God gifted her with and did it really well. और उसने क्या किया? जो बातें परमेश्वर ने उसे दी थी उन बातों को सही रीति से उसने इस्तेमाल में लिया। Yeah, for me, thank God for good tailors. और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं अच्छे दर्जियों के लिए। Because you're going to have one sleeve that's to your wrist and the other one that's up here. और अच्छे दर्जी है इसलिए सही रीति से वस्त्रों को वो सिल पाए। Thank God for this simple, ordinary woman. और इस बहन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। She did what God called her to do with a spirit of excellence. और परमेश्वर ने जो कार्य उसे करने को बोला था वह उत्कृष्टता की आत्मा में उसने उस कार्य को किया। The whole community was upset and they sent for an apostle. और हम देखते हैं कि वे सारे लोग उस बात से दुखी हो गए और उन्होंने चेलों के पास में सूचना भेजी। You need to come. You need to pray for this person. Oh, Dorcas. And he says, well, who is Dorcas? और उन्होंने चेलों के पास में खबर भेजी कि आना है, प्रार्थना करना है। चेलों ने पूछा होगा किसके लिए, कौन है दोरकस? The apostle said, I've never heard of this person. What did she do? और प्रेरितों ने कहा होगा कि कौन है ये दोरकस, इसके बारे में तो हमने कभी सुना नहीं। Well, she was our tailor. She impacted our whole community. So you need to come and pray. और वह हमारे समाज की दर्जी थी और उसने पूरे समाज के लिए कपड़े सिए हैं और हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ था। Are we making that kind of impact in our lives? प्रियो, क्या मैं और आप उस रीति का एक प्रभाव हमारे आसपास में, हमारे समुदाय में हम छोड़ पा रहे हैं? Always remember, God uses ordinary people who do extraordinary things. प्रियो, परमेश्वर हमेशा साधारण लोगों को इस्तेमाल में लेता है जो असाधारण बातों को करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करते हैं। It is the Father's great pleasure to bless you and to anoint you. और ये पिता की भली मनसा है कि वो आपको आशीषित करे, आपके ऊपर अपना अभिषेक को डाले। There is no substitute for the love of a father. और पिता के प्रेम को आप अन्य किसी बातों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। And I understand
many people did not experience the love of a father. और मैं प्रियो बताऊं, बहुत तेरे लोगों ने अभी भी उस स्वर्गीय पिता के प्रेम को सही रीति से अनुभव नहीं किया है। I was one of those. मैं भी उनमें से एक था। I remember the day, the first time my father told me he loved me. और मैं आज भी उस दिन को याद रखता हूं जब मेरे पिता ने मुझसे कहा पहली बार, मैं तुझसे प्यार करता हूं। I was 50 years old. मैं 15 और 50 और मैं 50 साल की उम्र थी मेरी उस समय। Isn't that amazing? I will always remember that day. और कितना अद्भुत है, मैं हमेशा उस दिन को मैं याद रखता हूं। The day you got saved, God said, "Oh, you're mine. I love you." और जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, प्रभु कहता तू मेरा है, मैंने तुझसे प्रेम किया। But the best we can do is make a copy and try and do what God is doing. और सबसे उत्तम बात कि प्रभु जो कर रहा है उस बात को हम दोहराते रहे। But a copy is not the real thing. लेकिन प्रियो, जब हम किसी चीज की नकल करते हैं, हमें समझना है वह असली बात नहीं है। This young man thought he had left home for good. He never wanted to come back. और ये जवान ने सोचा कि मैंने घर छोड़ा, वो सही काम किया है और मैं दोबारा वापस घर पे नहीं आऊंगा। He felt he understood exactly what life was about. और उसे ऐसा लगा कि वो समझ गया है कि जीवन कैसे जीना होता है। And he wanted to do things his way, not his father's way. और वह अपने तरीके से, पिता के तरीके से नहीं, अपने तरीके से चीजों को करना चाहता था। But it has been my experience. If I do it the father's way, it works better than my way. लेकिन मेरे जीवन के अनुभव में बताऊं, पिता के तरीके से अगर मैं चीजों को करूंगा तो वह मेरे तरीके से कहीं बेहतर, अच्छी रीति से वे बातें हो पाएगी। He went to a different country, to a foreign country. और हम देखते हैं कि वो एक दूर देश को चला गया। And he began to party and spend money. और वह वहां पर अपनी संपत्ति को खर्च करने लगा। And while he had money, things were great. और जब उसके हाथ में धन था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। Isn't it amazing when you have something, how many friends you have? आप देखिए, जब आपके पास में कुछ होता है, धन संपत्ति होती है, कितने सारे दोस्त आपके होते हैं। But when you have nothing, it's hard to find friends. लेकिन जब आपके पास में कुछ नहीं होता, ऐसे समयों में दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है। So as long as this young man was spending money, everybody loved him. और हम देखते हैं, जब तक ये संपत्ति में से धन खर्च कर रहा था, तब तक सब उससे प्रेम करते थे। But the money began to run out and his friends began to leave him. और हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे धन कम होने लगा, उसके दोस्तों की संख्या भी घटने लग गई। No one could tell this young man what to do. और कोई भी इस जवान को कह नहीं पाया कि जीवन आगे करना क्या है। He felt he had a better understanding of what God had for him in life. और उसने क्या सोचा था कि परमेश्वर से बढ़कर मुझे मालूम है मेरे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। Many people have this thing of I need to make an impact. I need to make a difference. और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे एक फर्क उत्पन्न करना है, मुझे एक प्रभाव का क्षेत्र उत्पन्न करना है। And if you're like me, I would like to know the purpose that God has for me. और यदि आप मेरे समान हैं तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आप जानते हैं प्रभु का उद्देश्य क्या है आपके बारे में? God, what is the meaning of my life? परमेश्वर, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? Do I have any significance in this world? क्या इस संसार में मेरी कुछ खास भूमिका है? But we focus on feeling, smelling, seeing, touching, what we have or what we can get. लेकिन हमारे साथ में क्या होता है, हम हमारे भावनाओं में बहते रहते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या छू रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा, इस प्रकार की बातों के अंदर हमारा समय हम गवाते रहते हैं। A foreign country, even in my mind, will take everything from me, everything that it can get. और एक दूर देश, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एक ऐसा देश जो आपके पास में जो कुछ भी है वो आपसे छीन लेता है। But when the money is gone,
what happens? धन खत्म हो गया, क्या हुआ? When I'm away from my family, what happens? मैं मेरे परिवार को छोड़कर दूर चला जाता हूं, तब क्या होता है? And many people's family is a church family or the people that they know. और बहुत सारे लोगों का परिवार कलीसिया का परिवार है, विश्वासियों का परिवार है, या आपके परिचित लोगों के समूह को परिवार समझते हैं। Because there have been many problems in their natural family, their church family replaces that. क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में उनके परिवार में समस्याएं होती है और उस कारण से कलीसिया उनका एक परिवार बन जाती है। I need people to love me and to correct me. और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रेम भी करें और उसी समय ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे सुधार सके। I don't like it when people come and say, "Oh, you should have done this. This was not the best idea." I don't like that. और यदि कोई आकर मुझे सुधारने का प्रयास करे कि इस कार्य को इससे भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था, तो स्वाभाविक रीति से मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। But I know it's the best thing for me. लेकिन मैं समझता भी हूं कि ये मेरे लिए सबसे उत्तम बात ये होगी। Maybe I get angry, but by God's grace, I change. और हो सकता है मुझे गुस्सा भी एक बार आ जाए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण फिर मैं बदलने के लिए तैयार होता हूं। Well, let me give you an illustration. और एक घटना मैं आपको बताऊं। There are many busy streets in our cities. और हमारे शहरों के अंदर बहुत व्यस्त रास्ते होते हैं। And one day a small child, a 2-year-old child, runs out in a very busy thoroughfare and sits down. और मान लीजिए एक दिन इस व्यस्त सड़क के ऊपर 2 साल का है 3 साल का एक छोटा बच्चा जा रहा है और जाकर उस सड़क के बीच में बैठ गया। And we see this child and say, "Oh Jesus, we need to pray." और आपने देखा कि सड़क के बीच में जहां पर व्यस्तता रहती है एक बच्चा बैठा हुआ है, क्या आप बैठकर कहेंगे प्रभु हमें प्रार्थना करना है? Or we call everybody and say, "Oh, this child is in danger." या ऐसा है कि हम सब लोगों को बुलाकर कहते हैं कि ये बच्चा खतरे में है। Who is this child's mother letting this child do this? और ये बच्चे की माँ कौन है, उसको आके इसको बचाने दो। Now, if we saw that, we would go rescue that child. और नहीं प्रियो, अगर हम किसी भी बच्चे को सड़क के बीच में देखे, हम क्या करते हैं? हम तुरंत जाते हैं और उसे वहां से बचाते हैं, हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आते हैं। Even if we had to drag that child to safety, we would do it. और अगर हमें उसको खींच कर भी निकालना पड़ेगा तो भी हम उसे खींचेंगे और उस स्थान से सुरक्षित स्थान पर हम उसे पहुंचाएंगे। Oh, but you don't understand. You hurt my feelings. My emotions are terrible. और तू मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया, मेरी भावनाएं बहुत तकलीफ दी थी, ऐसा वो बोल सकता था। This is the kind of friend that I need. और इस प्रकार की प्रार्थनाओं की हमें जरूरत होती है। Someone who loves me enough to tell me the truth. और प्रियो हमें समझना है कौन सी प्रार्थना है, कौन सा प्रभु, वह जो हमसे प्रेम करता है और उसी समय वह हमें सुधारता है, अनुशासित भी करता है। Doesn't the Bible say the truth will set you free? और बाइबल क्या कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Not my good ideas, but the truth will set me free. और आपके अच्छे विचार नहीं प्रियो, सत्य आपको स्वतंत्र करता है। Do we have that kind of friend in our life? क्या उस रीति का एक मित्र मेरे और आपके जीवन में है? The Father is exactly who that is. और पिता वही है जो दिखता है। He will correct me because he loves me. और वह मुझे सुधारेगा, ताड़ना देगा क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है। If I will let him. That's the issue. प्रियो एक ही बात है, क्या मैं उसे अनुमति दूंगा कि मेरे जीवन के अंदर वो मुझे सुधार सके? But we start at a certain place, walking away from God, and it may be a small thing. और प्रियो हमारे जीवन के अंदर कई बार प्रभु से दूर होकर भी हम कई बातों के अंदर हम उलझे रहते हैं, छोटी बातें होगी, उन बातों को करने का प्रयास करते होंगे। But when I keep doing it, it begins to grow and I get an idea of God that is not true.
और प्रियो, जब इस रीति से हम उन चीजों में उलझे रहते हैं, धीरे धीरे वो बातें बड़ी हो जाती है और एक ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आ जाती है जो प्रभु की ओर से नहीं है। And the more I allow it, the more hopeless I become. और जितना इस प्रकार की विचारधारा को मेरे जीवन में मैं स्थान दूंगा, उतना अधिक आशाहीन या निराशा में मेरा जीवन चला जाएगा। I don't know anyone who's gone to the hospital and say, oh, that person just gave up their faith and died. और मैंने समझता कि कोई व्यक्ति कभी अस्पताल गया होगा और जाकर ये बोला होगा कि उस व्यक्ति ने विश्वास को छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा किसी ने बोला नहीं होगा। In Hebrews chapter 11, it says, now faith is the evidence of things hoped for. और इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के अंदर हम विश्वास के बारे में एक परिभाषा को देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। Hope is extremely important in our life. और आशा हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Because hope, I believe, is given to us from our God, from our Father. क्योंकि यह आशा परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से हमें प्रदान की गई है। And hope is the basis of faith. और आशा विश्वास का आधार है। Hope is really important. Faith is really important. प्रियो, आशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विश्वास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। But if I don't have hope, I give up on life. लेकिन अगर मैं आशाहीन हो जाता हूं, मैं अपने जीवन से, प्राण से हाथ धो बैठता हूं। And it says, the Bible says, if you have faith as small as a mustard seed. और अब वचन में देखते हैं कि हमारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो You can speak to this thing and it will move. और आप इस बात को बोलोगे और वो पहाड़ अपने स्थान से हिल जाएगा। But if I have no hope, I will not believe that. लेकिन अगर मेरे अंदर आशा नहीं है तो मैं उस बात पर विश्वास ही नहीं करूंगा। That is an interesting thought. और वह अपने आप में एक रोचक बात है। Hope will cause faith and faith will cause action. आप देखिए, आशा से विश्वास और विश्वास से कार्य प्रकट होना है। This young man, he was in a terrible situation. अब हम देखते हैं यह जो जवान बहुत मुश्किल में फंस गया। All his money was gone. All his friends were gone. पैसा समाप्त हो गया, दोस्त छोड़ के चले गए। It says he came under someone from that foreign country because he was hungry. और हम देखते हैं कि वह भूख के कारण वह एक जगह में जा पहुंचता है। The Bible really says he came to the end of himself. और हम वो कहते हैं कि वह 17वें पद में जब वह अपने आपे में आया। That for me is wonderful. और अपने आप में वो एक अद्भुत बात है। I wished I could say I do that all the time. I don't. और मैं आपको कहूं, काश मैं हर समय इस पद को अपने जीवन में समझ पाता कि मैं हमेशा अपने आपे में रहता, लेकिन प्रियो, अक्सर हम अपने आपे में नहीं रहते। When I lose something in my house, I look everywhere. और जब मैं किसी चीज को ढूंढता हूं, मेरे घर में हर जगह में ढूंढता हूं, And I can't find it, so I look everywhere again. और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वापस ढूंढूंगा, And I still can't find it, so I look everywhere a third time. वापस नहीं मिला, वापस तीसरी बार मैं ढूंढूंगा। And finally, when I come to the end of myself, I say, oh God, can you help me find this? और जब इतनी बार ढूंढने के बाद में भी नहीं मिला तो मैं हार मान के कहता हूं, प्रभु मुझे नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Almost immediately, I will find what I'm looking for. और तुरंत क्षण भर के अंदर मुझे मालूम पड़ जाता है, प्रभु मुझे बता देता है मैं क्या ढूंढ रहा था। I understand this very, very well. और अच्छी रीति से मैं इस बात को समझता तो हूं। I am trying to go to God first. और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो पहले प्रभु के पास जाऊं। Then, rather than trying everything on my own, I say, God, I need to put you first. और अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से चीजों को करने के स्थान पर पहले मैं प्रभु की ओर देखना आरंभ करता हूं। I am learning, but I'm not doing well yet.
और मैं सीख तो जरूर रहा हूं, लेकिन अभी भी बार बार पराजित हो जाता हूं उस मामले में। My hope is that God continually reminds me to go to Him for my need. और मेरी उम्मीद और आशा यही है प्रभु से कि प्रभु मुझे याद दिलाता रहे कि मैं अपनी आवश्यकताओं के साथ में सही रीति से प्रभु के पास में मैं जा सकूं। The Bible says, and He shall meet all of your need according to His riches and glory by Christ Jesus. और हम देते हैं अपने धन की बहुतायत के द्वारा, मसीह में धन की बहुतायत के द्वारा वह सब बातों को जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। For a long time I said, oh Jesus, He's going to meet all of my needs. और मैं काफी लंबे समय तक कहता था कि प्रभु यीशु मेरी सारी बातों का प्रबंध करेंगे। I was reading that one day and I had an amazing insight. और एक दिन जब मैं उस पदभाग को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे उसकी गहराई में ले गया। And He will meet all of your need, singular, not plural. और वह तुम्हारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा लिखा है। So, what is my need? अब मेरी जरूरत क्या है? Jesus. यीशु मसीह। In Him is everything that I need. और मसीह में मुझे जो कुछ भी चाहिए वे सारी बातें। But I need to go to Him first. लेकिन सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है? प्रभु के पास। It's kind of like when I have many choices, I always think about all of my choices before I go to my Father. और कई बार हमारे पास में जब बहुत सारे चुनाव होते हैं तो प्रभु के बात को चुनने से पहले हम अपने तरीके से कई बातों को पहले चुन लेते हैं और सबसे अंत में हम प्रभु के पास जाते हैं। What is amazing to me is this father never went to that land to try and rescue his son. और हम देखते हैं यह पिता के खासियत के बारे में कि पिता उस बच्चे को छुड़ाने के लिए किसी और व्यक्ति के पास में नहीं गया। He knew the son had to come to the end of himself before anything would change. और उसे मालूम पड़ गया था कि बेटा उसका सारा धन खत्म हो चुका है और वो बिल्कुल कंगाली की स्थिति में है। I challenge all of us, me included. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें प्रभु के पास लौटना है। Let's learn how to go to God first. और सबसे पहले आवश्यकताओं को लेकर हम प्रभु के पास में आना सीखना है। And how do I go to God? In prayer. It's just a conversation between you and your Father. और मैं प्रभु के पास में कैसे जाता हूं? यह एक वार्तालाप है आप और आपके पिता के बीच में। I did a little teaching last week on who we are in Christ. और पिछले सप्ताह मैंने इस विषय को सिखाया था कि मसीह में हम कौन हैं। It is amazing when we begin to study what God thinks about us. और अपने आप में बड़ा ही रोचक है जब हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। In Him, all things exist. और उसमें सब बातों का अस्तित्व है। And He lives in me. और वह मुझ में रहता है। Wow. If He lives in me, then I need to be going to Him first. और यदि वह जिसमें सब बातें हैं वह मुझ में रहता है तो मेरी जरूरतों के लिए सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है? उसके पास में जो मुझ में रहता है। I have all the power of God living in me. और परमेश्वर की सारी सामर्थ मुझ में मसीह में निवास करती है। I believe my job is to release God to do whatever He wants to do through me. और मेरा कार्य क्या है? मैं विश्वास करता हूं कि वह मसीह जो मुझ में बस रहा है, मैं स्वतंत्रता दूं कि मसीह मुझ में से होकर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। When that happens, I will begin to see with my eyes what I want to see. और जब वह होता है, मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा उन बातों को जो मैं देखना चाहता था। I am really sorry. I need to stop. We have a worship and prayer conference going on for 50 hours starting in a little while. So I need to prepare for that. और मुझे यहाँ पर अपनी बात को बंद करना होगा क्योंकि हमारी कलीसिया के अंदर एक 50 घंटे की आराधना चल रही है और उसमें मुझे भी जुड़ना है। Remember always, God is for you and not against you. और प्रियो, हमेशा हमेशा
हमें इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारी ओर है। And God is more than enough to take care of you. और परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्तिकरण करने की। I thank you for praying. It makes a difference. और धन्यवाद प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए। प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आती है। And I would love to thank my interpreter. He is amazing. और धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। Blessings to all of you. Hopefully, I will see you again sometime soon. और आप सभी को एक और बार दिल से धन्यवाद। प्रभु ने चाहा तो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। Thank you very much. धन्यवाद आप सभी को। Thank you so much, Pastor Laurie. Thank you for taking this effort to come and minister the word of God. We are so blessed. We were discussing about sonship for the last 3 weeks. So this is an additional, revelation from the word of God, a continuation of sonship. Thank you so much. God bless you abundantly. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much. Thank you. Thank you.